Hello, good morning, student. We will start the chapter Role of Government in Healthcare. Today's topic is Youth Polio Immunization Program. An outbreak of polio was witnessed in India with the period of polio virus. According to survey of 2006, 676 cases of polio were reported from 114 districts. The year 2007 reported 874 cases from 99 districts of the country. Responding to this, the supplementary immunization activity were intensified in the high risk area. As a result, only one case was reported to have taken place in the year 2001. अब देखिए, in 11th 5-year plan attempt to obtain zero transmission status for consecutive 3 years and obtain polio free certification. अब देखिए जो है initiatives of the government क्या, government has taken some praiseworthy step to eradicate polio from the country. और पोलियो को इरीगेट करने के लिए उन्हें स्टेप्स लिए हैं. ऑल द स्टेट यूनिटीज इन द कंट्री हैव प्रिपेयर्ड अ रैपिड रिस्पॉन्स टीम टू रिस्पॉन्ड टू एनी पोलियो आउटब्रेक इन द कंट्री. स्पेशल बूथ्स वर एस्टेब्लिश्ड इन द एरिया बॉर्डरिंग अदर कंट्री सो दैट एवरी चिल्ड्रन बिलो 5 years of age entering our country are given polio drops. India government has identified 107 high risk area where prolonged strategy is being implemented to ensure sanitation, hygiene, and clean drinking water. In addition to oral polio vaccine and other vaccination, not only vaccination booths have been established, but efforts like house visit, vaccinating children at major bus stop, railway station, marketplace, etc. have been intensified. नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में देखिए कौन कौन से जो उन्होंने नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए प्रोग्राम चलाए उसके बारे में. नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NVPSP is being implemented for the prevention and control of vector borne diseases like malaria, filariasis, black fever, Japanese dengue, and chikungunya. Most of these diseases are epidemic borne and have seasonal fluctuation. Black fever is endemic in 3 states of the country, namely Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh. The National Health Policy 2002 envisaged black fever elimination by 2010. Under the elimination program, the central government provided 100% operational care cost of the state government. In addition to it, anti-black fever, Kala Azar, medical drugs, and insecticides have been provided. Dengue is prevalent in different parts of the country, but outbreak of the disease mainly reported in urban area. However, in the recent past, dengue reported from rural area as well as during 2005, chikungunya fever had re-emerged in the country, with Andhra Pradesh to report the first in epidemic proportion after remaining quiet for about 3 decades. The government has been taken various steps to tackle the vector-borne disease, including dengue, chikungunya, which include implementation of strategic action plan for prevention and control of chikungunya by the state government. To reduce the number of TB cases, good quality anti-TB drugs are provided to the patient. अब देखिए सब इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे पल्स पोलियो अभियान चलाया गया ताकि हमारे जो भी केसेस हैं उनको कम किया जाए. ठीक है. और 2007 में देखो 874 रिपोर्ट केसेस हुए थे 99 ज़िले में. ठीक है. 2006 में 676 थे. तो 2007 में बढ़ रहे थे पोलियो. तो फिर ये उसके लिए इम्यूनाइजेशन जो भी है वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस अपनाया गया ताकि पोलियो जो है भारत में थोड़ा सा कम हो. और 11 ईयर 5 ईयर प्लान किए गए जिससे क्या हो गया इसको पोलियो को देश से हटाया गया. ये भी एक बड़ी समस्या थी. ठीक है. तो इसके लिए क्या किया जो है गवर्नमेंट ने स्टेप्स अपनाई. उसके लिए देखो द ऑल स्टेट ड्यूटी इन द कंट्री हैव प्रिपेयर्ड अ रैपिड रिस्पांस टीम टू रिस्पॉन्ड टू एनी पोलियो आउटब्रेक इन द कंट्री. टीम बनाई गई तो जो रिपोर्ट दे रही थी कि कौन कहाँ पोलियो हो रहा है क्या, उसके लिए मुझे वैक्सीनेशन कैसे किया जाए ताकि डिजीज़ को रोका जाए. ठीक है.
और जो भी है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप दी मतलब ओपीवी बनाई गई, ताकि ना मतलब ये जो समस्या है देश से हटाई जाए। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो हैज़ आइडेंटिफाइड 10 हाई रिस्क एरिया वेयर मल्टी prolonged strategy is being implemented to ensure sanitation, hygiene, and clean drinking water. In addition to oral polio vaccination and other vaccination, not only vaccination both have been instituted, but efforts like house to house visit भी कराया गया है। ठीक है। वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रंस एट मेजर बस स्टॉप पे बच्चों को जो वैक्सीनेट किया गया, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट प्लेस, जो जहाँ पर, ताकि डिजीज़ को ख़त्म किया जाए। और हम मतलब पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो गए इस चीज़। ठीक है। देखिए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है और भी डिजीज़ थी उनको रोका गया। ठीक है। और डेंगू जो है वो डिफरेंट पार्ट जो कंट्री में प्रिवेलेंट हो रहा है उसको हटाया गया। ठीक है। उसके लिए प्रयास किए गए। ब्लैक फीवर और बहुत सारी बीमारियाँ फैली थी, इनके लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स अच्छे डाले, कहने का मतलब। ठीक है। एंटी टीबी ड्रग्स और टीबी केसेस जो रिड्यूस हुए हैं, और गवर्नमेंट के प्रयास, इसलिए ये बीमारियों को क्या किया गया, भारत से धीरे धीरे कम हो गई बीमारी। ठीक है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर भोपाल विद प्रोफेसर, इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स डाल के इन बीमारियों को रोका है देश से। ठीक है। और ब्लैक ये जो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हेल्थ केयर के लिए, देखो गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है फैसिलिटी देके और हेल्थ सेंटर जो है बना के रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो है डिजीज़ को कंट्रोल करने के प्रयास किए, और खुद बहुत हद तक तो हम सक्सेस भी हो गए। ठीक है। अब देखिए इंडिया जो है, देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसका लोगो देखिए। ठीक है। इस तरीके से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का लोगो है। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलाया गया, ताकि क्या हो, भारत से जो भी बीमारियां हैं वो हटें और एक जो है स्वस्थ जो है मनुष्य जो हमारे देश में है, ताकि हमारा डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट।